Hi everyone, मैं नीलव भाटिया हूँ. I was a JEE aspirant for the year 2020. I belong from Vadodara, Gujarat. मेरा all India rank in JEE mains was 1755 and my all India rank in JEE advanced was 5697. The core motivation behind actually doing JEE or engineer बनने के पीछे core motivation would be because of my family background. Like मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे मामा, ये सब like belongs to engineering background. तो बचपन से I was kind of motivated along those lines, seeing all those careers ahead of me. कि I also wanted to pursue something in of the similar fashion. So that was the core motivation behind that. Other than that, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था since the beginning itself. Like if my mother used to ask me that try to study something for today, तो मैं मैथ्स लेके बैठ जाता था. इससे मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा परफॉर्मेंस कम होता था. But like I used to love maths from the beginning itself. फिर 10th के बाद I got 95.4 in CBSE. So like parents also thought and everybody else thought that you are a bright student and you should attempt JEE if you want to pursue engineering. जब मैंने 11th में when I started, I was not aware actually कि what was the pattern of the examination, कैसे actually आपका preparation होना चाहिए. So I was very newbie and to be very honest, जो आपको core requirement होती है before diving into a competitive exam such as JEE, उसके हिसाब से I was not prepared enough. Like I did not know what I was to do when I was preparing for JEE. But regarding that, I took the advice of my seniors जो स्कूल में मेरे साथ लाइक मेरे से 1 साल बड़े थे या 2 साल बड़े थे. And I talked to them and फिर I joined a coaching so to kind of help my preparation. जैसे ही आप 10th से आते हैं, आप 11th में आते हैं, तो द अमाउंट ऑफ सिलेबस जो आपको 10th में होता है, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी मिनिस्क्यूल इन कंपैरिजन टू जो आप यू फेस इन 11th, राइट. बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू बैलेंस योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद school ka academics and board examinations as well. So in the first month, I would say I struggled a lot. I could not keep good scores in my tests. I could not do well in my school quizzes as well. But the main thing that helped me during that time was to prioritize my tasks. I then created a very rigorous schedule. I used to wake up at 5 a.m. each day, and I had planned everything out in small chunks of time. Okay, I wake up at 5 a.m. right? So from 5 to 6:30, I could devote my time to morning studies. मैं एक सेशन कर सकता था या मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, anything of that sort. And then I used to go to schools and 12:30 तक मेरा स्कूल रहता था. After 12:30 I used to come back. Like from then I used to have my lunch. I used to then start studying again at 1:30 ish, and 1:30 से I would study till 2:30. 2:30 से I would take a little break, watch my TV shows, play games on my mobile, and then at 3:30 I used to go for coaching. After going to coaching at 3:30, I used to come back at 8:30, and then after having dinner, I used to do one more session of studying from 9 to 10:30. And because I had woken up at 5 a.m., then I was very tired at 10:30. और फिर 11 बजे के आसपास I used to go to sleep. So the main thing was कि because I had such a rigorous schedule in place, this is what helped me kind of overcome these challenges. तो पहले तो सर आपने जो बात कही कि एनसीईआरटी इज वेरी वैल्यूएबल इन योर नॉट ओनली इन योर बोर्ड प्रिपरेशन, इन योर जेडब्ल्यू प्रिपरेशन एज वेल. तो आई वुड लाइक टू अग्री विद दिस स्टेटमेंट 100%. जब आप 11th की प्रेप चालू करते हैं और आप नए नए ऑथर्स की बुक्स देखते हैं, आप नए रेफरेंस मटेरियल्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यू माइट फील कि एनसीईआरटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. मैं सीधा रेफरेंस मटेरियल से चालू करता हूँ, क्यों ना मैं जेई के क्वेश्चन सीधा सॉल्व करना शुरू करूँ. बट दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट. आपके थोड़े क्वेश्चन चलो हो भी जाएंगे, but your core concepts will not be cleared. And when you are going to sit for your JEE exams finally, तब आपको ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जेई पेपर आप जैसे सोचते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. इट इज नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट इज आल्सो टेस्टिंग योर कोर फंडामेंटल्स. पर्टिकुलरली लाइक द क्वेश्चन यू आस्क कि किस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इज वेरी वैल्यूएबल. आई वुड से कि अगर आपको जेई मेंस में इवन इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री, all you need to do is go through each and everything that is mentioned in NCERT, and that will be it.
अगर आप एनसीईआरटी से केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से आप यू कवर योर एंटायर सिलेबस, देन आई डोंट थिंक इन एटलीस्ट इन जेईई मेंस देयर विल बी एनी सिंगल क्वेश्चन जहां पे आप स्टक होंगे। तो अगर आप ये कवर कर लेंगे, पर्टिकुलरली मैथ्स और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली फिजिक्स में जो आपको थियरी दी है वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन की है, बट मोर सो इन द केस ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज योर बाइबल फॉर योर जेईई प्रेपरेशन। जैसे लाइक इफ आई एम पर्टिकुलरली स्पीकिंग फॉर द पर्पस ऑफ जेईई मेंस, अगर आप जेईई मेंस के लिए टू कवर योर फिजिक्स सिलेबस अदर देन एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एवरी एस्पिरेंट आपका फर्स्ट फोकस एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी एक बार क्लियर कर ली, आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर हो गए, और एनसीईआरटी में पीपल टेंड टू स्किप दोस एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ इट, राइट? वो लोग एक्सरसाइज देखते हैं, दे रीड द थियरी बट दे थिंक कि एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, आई शुड जस्ट मूव ऑन टू माय रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस। दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आप पहले फिजिक्स पढ़िए, उसमें आपके कोर कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, दैट विल एनसीईआरटी विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। देन यू मूव ऑन टू फिजिक्स के एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ एनसीईआरटी। और उसके बाद अगर आपको और प्रेप चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तो नंबर वन बुक, लाइक आई नो दिस विल बी अ रिडंडेंट स्टेटमेंट, एस्पिरेंट्स जो होंगे उनको शायद पता ही होगा, बट एचसी वर्मा is the number one book that you should refer. Other than that, you can use any other material that you get. Like actually, you don't need to purchase these materials. Question banks are openly available on net free of cost. Coaching centers have made them accessible, and our government is also taking initiative to compile a question bank. तो आप एचसी वर्मा के क्वेश्चन देख के आप क्वेश्चन बैंक कहीं से भी उठा के लगा सकते हैं। तो फिजिक्स में अगर आपको अच्छा बनना है तो द मेन फोकस शुड बी फर्स्ट एनसीईआरटी, और उसके बाद आप एचसी वर्मा कर लेंगे तो आई कैन गारंटी कि आप एटलीस्ट जेईई मेंस के लिए आप सेट हो जाएंगे। कौन सा सो द क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? सो द थिंग अबाउट, लेट अस स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, राइट? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं ज्यादा क्वेश्चंस करना एम नहीं समझता था, बिकॉज़ क्वेश्चंस यूज्ड टू चेंज एवरी टाइम, राइट? बट द थिंग इज द कोर फैक्ट्स बिहाइंड दोस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सेम रिगार्डलेस। अगर आपके कोर फंडामेंटल्स, अगर आपने फैक्ट पढ़ते, आई एडमिट के इनऑर्गेनिक इज मोर ऑफ थियरी बेस्ड देन प्रैक्टिकल थिंग्स। तो अगर आपके कोर फंडामेंटल्स, आपके कोर फैक्ट्स जो आपके दिमाग में वो क्लियर है, तो रिगार्डलेस आप कोई भी क्वेश्चन वो थ्रो करेंगे, यू विल बी एबल टू आंसर। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से सॉर्ट करनी है ना, तो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी। अगर आप हर एक फैक्ट को अच्छे से प्रोसेस करेंगे, अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे आप पढ़ने के बाद, देन योर इनऑर्गेनिक एटलीस्ट विल बी सॉर्टेड। कमिंग ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री भी ऐसा है कि लाइक फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट आप उसमें क्वेश्चंस भी और लगा, अदर देन द क्वेश्चन दैट यू सॉल्व इन एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस भी लगा दो, तो दैट विल बी समथिंग दैट विल हेल्प, राइट? अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा करना है आपको, फर्स्ट एनसीईआरटी तो पढ़नी है, इट्स वेरी ऑब्वियस, बट अदर देन दैट आई यूज्ड टू रिफर टू अ बुक। लाइक लोग ऑर्गेनिक की बहुत सारी दूसरी बुक्स लेके आते थे, बट आई यूज्ड टू फाइंड देम वेरी टफ, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आई यूज्ड टू परचेज अ बुक फ्रॉम सिंगेज सीरीज। तो उस सीरीज की बुक मैंने सिंगेज की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों लगाई थी, तो दैट यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। तो आप वो बुक को रेफर कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बेस्ड। बट पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन करना भी इजी होगा। तो अगेन आई वुड रीइटरेट ऑन द पॉइंट कि आप एनसीईआरटी पहले पढ़ें। जैसे मैथ्स का सवाल आया, तो द कोर आइडिया रिमेन्स द सेम। फर्स्ट आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू से कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर बिट ऑन द इजियर साइड। अगर मैथ्स के जेई लेवल के क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो एनसीईआरटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े उससे लाइक इजियर साइड पे होंगे। तो व्हेन यू आर डन विद एनसीईआरटी, राइट, तो आप आरडी शर्मा रिफर कीजिए। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैंने आरडी शर्मा 1 एंड आरडी शर्मा पार्ट 2 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दैट इज हाउ इट वाज डिवाइडेड फॉर अस। तो मैं जब एनसीईआरटी, व्हेन आई यूज्ड टू गेट थ्रू विद माय एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आई शुड देन रिफर टू आरडी शर्मा। आरडी शर्मा का लेवल भी काफी अच्छा है, और आप कॉम्पिटिटिव, आरडी शर्मा एक अलग अलग सीरीज थी बुक की, तो आप वो भी रिफर कर सकते हो इफ यू जस्ट वांट टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज। बट आई वुड से कि आप दोनों बैलेंस करो। आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करो, लेकिन आप जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका बोर्ड प्रेप भी साथ में होता रहे। सो यू वुड हैव टू
काइंड ऑफ डू इट वंस मोर। अगर आप जब जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे तो यू विल बी सॉर्टेड, आपको वापस वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो हो जाएगा। रही बात की मैथ्स में स्कोर कैसे इंप्रूव करें, तो इट इज वेरी ट्रिवियल। अगर आपको मैथ्स में ज्यादा स्कोर करना है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब द कोर फंडा बिहाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, जस्ट उसको ट्विस्ट और थोड़ा ट्रिकी करके दिया जाता है। तो ओनली वे यू कैन कॉम्बैट दोस क्वेश्चंस इज अगर आपने उसके जैसा या उससे थोड़ा सिमिलर क्वेश्चंस पहले देख रखा हो, और ये तभी होगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। सो फॉर मैथ्स द ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Other than that, Cengage, like I mentioned, I used to do Cengage ka inorganic and organic. For maths also, I used to follow Cengage ka series for trigonometry. Then I used to follow for calculus as well. And this is what I used to do. But the sequence of preparation, for particularly if I have to say something, would be NCERT first. Then you move on to RD Sharma. RD Sharma Volume 1, Volume 2, and competitive exam ke liye alag RD Sharma did that too. And then when you are done with everything, only then move on to other reference materials such as books from Cengage. जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में एक अप्रोच आया, ठीक है, बट यू मस्ट फाइंड कि ये एक अप्रोच से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना इज नॉट काइंड ऑफ पॉसिबल। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो आपने एक ही अप्रोच लगाए तो द सॉल्यूशन बिकम्स टू लेंथी। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब आपने क्वेश्चन प्रोसेस कर लिया अपने दिमाग में, समथिंग एल्स शुड क्लिक इन योर माइंड कि ये सिर्फ एक अप्रोच से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, देयर इज अनदर फंडामेंटल का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का आ सकता है। या केमिस्ट्री में देखूं तो आपके जैसे सॉरी अगर मैं फिजिक्स में देखूं तो आपके मोशन में थोड़ा उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डाला। तो जब आपके दोनों फंडास क्लियर होंगे ना, तभी यू कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। पर फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से दो फंडामेंटल लाइक टाइप इसमें अप्लाई हो रहे हैं, एंड देन यू नीड टू थिंक इन दैट अकॉर्ड कि ये दोनों से कॉम्बाइन करके मैं आंसर कैसे ला सकता हूँ। अगर आप एक ही अप्रोच लगाओगे उस क्वेश्चन पे और दूसरे से डेराइव होने वाले फैक्ट्स नहीं लगाओगे, तो यू माइट फाइंड द आंसर, बट दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये हर एस्पिरेंट के दिमाग में काइंड ऑफ होता ही है कि हाउ डू आई बैलेंस, जब मेरा जेई पास आ रहा है, जब मेरा बोर्ड पास आ रहा है, कैसे मैं अपने 11th को रिवाइज करूं और 12th को कैसे करूं। तो इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड द ओनली थिंग दैट कैन बी डन टू कॉम्बैट दिस इज टू बी वेल प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ टाइम। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मैं 11th का मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ एक बार और मैं वापस उसको फिर नहीं देखूंगा, या मैं जेई को अभी छोड़ देता हूँ, 11th का सिर्फ एनसीईआरटी निपटा देता हूँ, जेई तो मैं सब साथ में एक साथ देखूंगा, तो दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। जैसे कि आपके स्कूल या कोचिंग में या कहीं से भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, वहां पे एक टॉपिक 11th का चल गया, तो द थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज उस टॉपिक के आपने नोट्स बना लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने उस टॉपिक को, अगर आप जे एस्पिरेंट हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, तो आपने उस अकॉर्ड में भी उसको तैयार कर लिया, नॉट जस्ट एट द बोर्ड लेवल, एट एनसीईआरटी लेवल, आपने उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कर लिए। और आपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो उस टॉपिक में आपको हार्ड लगा था वो भी एक बार लिख लिया। सो थ्री थिंग्स टू कीप इन माइंड इज, आपने जो 11th का टॉपिक आपको पढ़ा है उसके नोट्स बना लिए, 11th के टॉपिक के आपने एडवांस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी लगा लिए, और जो टॉपिक उसके टॉपिक के सब टॉपिक आपको नहीं आ रहे थे, हार्ड लग रहे थे, उसका भी आपने लिस्ट बना लिया। तो दीज थ्री थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर अप्रोचिंग 11th। जैसे ही आप 12th में आते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज और अपने स्केड्यूल में ऐड करनी। जैसे ही आपने मंडे टू सैटरडे शायद आप स्कूल में या कोचिंग में बिजी रहते हैं, राइट। संडे इज अ डे व्हेन यू हैव सम फ्री टाइम विद, तो आपको उस फ्री टाइम में क्या करना है, आपने जो 11th में नोट्स बनाए उस पर्टिकुलर, आपको हर एक वीक के लिए एक टॉपिक या सब टॉपिक उठाना है 11th में जो आपने पढ़ा है, और अपने 12th की प्रिपरेशन के साथ हर संडे को आपको 2 से 3 घंटा वो 11th का पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करने के लिए देना। तो जब आप ये पूरा साल 12th में करेंगे ना, और आप जब दिसंबर अप्रोच करेंगे और जब आपका जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जैन, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपने 11th और 12th दोनों एक ही साल में पढ़े, क्योंकि आप 11th भी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग 12th आप 11th भी रिपीट करते जा रहे हो। तो आपका दोनों काइंड ऑफ एक ही साल में प्रेप हो रहा है, जबकि आपने पढ़ा तो 11th में भी है, लेकिन वो कंडेंस होके आपको ऐसा लगेगा कि आपने दोनों टॉपिक अभी तो पढ़े हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये टॉपिक तो पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया कि मैं भूल चुका हूँ। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू, तो आप ऐसे इजीली अप्रोच कर सकते
तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, स्टूडेंट जब अपनी प्रिपरेशन चालू करते हैं ना, वो काइंड ऑफ फेवरेटिज्म में लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं था, मुझे लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, राइट। तो मैं क्या करता था, मुझे जब पढ़ने के लिए बोल दिया जाता तो मैं मैथ्स कर देता था, फिजिक्स कर देता था, लेकिन केमिस्ट्री को काइंड ऑफ नेग्लेक्ट करता था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका फेवरेट टॉपिक है, अगर आप उसमें जो भी आपको पढ़ना होता है उस टॉपिक के रिलेटेड, आप वो इजीली ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो रादर देन डिवोटिंग ऑल योर टाइम टू योर फेवरेट टॉपिक, आपको उस टॉपिक को उतना ही टाइम देना है जिसपे आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच रहे हैं। उस लेवल पे अटेंड करने के बाद यू नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट अगर मेरे को तीनों सब्जेक्ट में करना है, तो द बेस्ट थिंग टू डू इज, मैं हर दिन के लिए डिवाइड कर दूंगा कि मेरे को ये आज पढ़ना है। इफ आई एम स्टडिंग फिजिक्स ऑन मंडे, then I need to make sure कि then I study either maths or chemistry on Tuesday, and whatever is remaining I study that on Wednesday. या अगर आपको ऐसा है कि आपको एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट करने हैं, तो अगर आप जैसे सपोज कि आपका 6 घंटे का स्टडी स्लॉट है, सेल्फ स्टडी स्लॉट, तो आप उस 6 घंटे को इक्वल टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 hours 2 hours 2 hours, 2 hours फॉर फिजिक्स, 2 hours फॉर केमिस्ट्री, 2 hours फॉर मैथ्स। तो फेवरेटिज्म आपको नहीं दिखाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी दो, and that is how you approach time management for competitive exams. तो जब मैंने प्रिपरेशन चालू की, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई नीड टू फॉलो व्हाइल डूइंग माय प्रिपरेशन, राइट। तो मैं क्या करता था, जब मैंने थोड़ा पढ़ लिया, जैसा मैंने 1 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ लिया, तो मुझे मन हुआ कि लेट अस टेक अ ब्रेक। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं 20 मिनट का कोई एपिसोड देख रहा था मेरे फेवरेट सीरियल का, या थोड़ा चैटिंग कर लेता था, या सोशल मीडिया पे एंगेज हो जाता था। बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू पर्टिकुलरली अवॉइड। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो, या आप अपना पूरा टीवी सीरीज या जो भी आप मूवीज आपको देखने आप बंद कर दो, बट दैट शुड नॉट बी बिटवीन योर स्टडी स्लॉट्स, राइट। अगर 2 घंटा आप पढ़ रहे हो, देन यू हैव डिवोटेड 15 आवर्स टू योर ब्रेक। उस ब्रेक में आपको ना सोशल मीडिया, ना टीवी, ना सीरीज, इसमें से कुछ नहीं करना। that 15 minutes is something that your mind needs to refresh. अगर आपके माइंड को उस टाइम में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ना, लाइक दिस इज द वे ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, लाइक विजुअल मीडियम ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, राइट। स्टडिंग हो गया या टीवी देखना हो गया, तो आपको उस सेंसेस को उस ब्रेक में आप उसको उस सेंसेस को ब्रेक देना है, उस पर्टिकुलर ब्रेक। तो जैसे मैंने पढ़ लिया, दिस इज द आइडियल थिंग टू डू बाय द वे। जैसे मैंने 2 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ लिया और मैंने 15 मिनट्स अब मेरे ब्रेक को मुझे डिवोट करना है, तो आप म्यूजिक सुनो, आप क्लासिकल म्यूजिक सुनो। यू शुड लिसन टू मोजार्ट। यू कैन आल्सो लिसन टू, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप क्लासिकल म्यूजिक सुनो। अगर आपको फंकी हॉप या रैप पसंद है, तो आप वो भी सुन सकते हो। बट आई वुड पर्टिकुलरली से कि आप ऐसे हाई बीट म्यूजिक थोड़ा अवॉइड करो। थोड़ा आपके माइंड को काम डाउन करे ऐसे म्यूजिक सुनो, आप calming music सुनो। You can also listen to whale noise. They are also very good if you want to calm your mind down. और आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आई नो कि ये बात बोलना इज वेरी प्रीची, ऐसा लगता है कि मतलब भाई हमें बता रहा है, इज गिविंग अस नॉलेज, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड एक्चुअली इम्प्लीमेंट। इट इज, आई नो इट इज वेरी हार्ड। सबको ऐसा ही होता है कि ब्रेक टाइम में आई नीड टू डू समथिंग दैट इज एंजॉयबल फॉर मी एज वेल। बट अगर आपने वो 15-20 मिनट में टीवी देख लिया या कुछ और एंगेजिंग कर लिया, सोशल मीडिया चला लिया ना, तो यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज इन द नेक्स्ट सेशन। तो आप अवॉइड कीजिए ये करना। तो एंड अप्रोच योर ब्रेक्स बाय डूइंग समथिंग व्हिच इज प्रोडक्टिव and enjoyable to you, as well as it is calming to you. तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, या also you can do is you can do a bit of light reading. अगर आपको नॉवेल पसंद है, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, like I particularly used to like reading fiction a lot. तो मैं जॉर्ज आर आर मार्टिन की मैं बुक्स पढ़ लेता था, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स पढ़ता था। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डिड माय ब्रेक टाइम। तो आप ये सब कर सकते हो। Yeah, so actually, sir, the best way to answer this question is kind of taking my own example. मेरे like I had something that happened to me between like my first attempt and my second attempt, and how I drastically improved my performance across those attempts, right? तो जब मैं 12th दिसंबर में था ना, तो I was not in the right frame of mind. मैं एक दो बार बीमार भी हो गया था। मेरी प्रेप भी मतलब सही से नहीं, मेरा 12th का सिलेबस थोड़ा पेंडिंग हो रहा था। जनवरी जेई अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और मैं काफी एंशियस था मेरी प्रिपरेशन को लेकर। तो व्हेन आई अटेम्प्टेड माय जनवरी अटेम्प्ट, अगर मैं मेरी कोचिंग या मेरे फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, तो एवरीबॉडी अराउंड मी एक्सपेक्टेड कि मैं 99 परसेंटाइल के मार्क दूंगा।
and that I used to routinely do in my coaching के exams or my school के examinations. I had reached that level of preparation in my time. But exam में मैं temperament maintain नहीं कर पाया and I broke down. मुझे क्वेश्चंस एक दो अटक गए तो मेरा सॉल्व करने का मोटिव चला गया, मेरा मोटिवेशन चला गया और मैं सही टेम्परामेंट में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाया. कमिंग टू रिजल्ट, मेरे एक्सपेक्टेशंस 99% क्रॉस करने के थे एंड हियर आई वाज सिटिंग विद ओनली 96.25%. Like I had cleared JEE mains, but that was not a decent rank with which I could obtain. I wanted to do computer science. What I am currently doing, I wanted to pursue computer science and engineering, but that is not a rank where you will get a good admission in a good NITs with that rank, right? तो 96.25 मेरे परसेंटाइल बने. तो उसके बाद मैं काफी डिमोटिवेट कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया. I prepared so hard in 11th. I prepared so hard in 12th. And everybody around me, even my friends, even my parents, even my relatives, even my coaching ke sirs and madams expected me to kind of get a better rank than this, much better rank than this. तो कब ये क्या होता है पता है, जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन से अपने परफॉर्मेंस को बाइंड कर देते हो ना, तो यू पुट योरसेल्फ अंडर अ लॉट ऑफ अनड्यू स्ट्रेस, राइट. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यार मेरे को इतना तो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आप अपने आप पे ऐसा प्रेशर डाल रहे हो जिससे आप उभर नहीं पाओगे. एंड आप लाइक एज अ प्रीवियस जेईई एस्पिरेंट, लाइक यू कैन टेक दिस वर्ड टू द ग्रेव विथ यू कि अगर आप उस प्रेशर में एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन रिगार्डलेस कितनी भी अच्छी हो, आप राइट सेट ऑफ माइंड में, राइट टेम्परामेंट में पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है. एंड द ओनली वे यू शुड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इज दैट आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना है. अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो आई नीड टू स्टडी विद पैशन, आई नीड टू स्टडी विद लव फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. यू शुडंट कंसीडर जेईई और योर प्रिपरेशन एज अ बर्डन टू यू. इट इज समथिंग न्यू, इट इज समथिंग एक्साइटिंग, इट इज समथिंग वेरी गुड. You are exploring the subject to a depth which you otherwise would not if you are not preparing for JEE. आप उतने डेप्थ में उसको नहीं पढ़ते, लेकिन you have been given such a good chance. आप JEE दे रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और आप एक्सटर्नल प्रेशर को अपने आप पे अफेक्ट मत डालने. लोग आपसे कुछ भी कहे, लोग आपसे मतलब कितना भी एक्सपेक्ट करे, लोग आपको बोले कि भाई तू तो कर ही ले, तू तो टॉप ही कर लेगा या एनीथिंग, आप उससे अनबॉर्डर्ड रहो. आप अपने अंदर ही देखो और अपनी प्रिपरेशन से अपने आप को मोटिवेट करते हो. आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन में मत जाओ. तो दैट इज समथिंग दैट आई फॉलोड आफ्टर काइंड ऑफ नॉट गेटिंग अ गुड इनफ रैंक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. और फिर आई फॉलोड थ्रू, लाइक कोविड आ गया तब, आई फॉलोड थ्रू कोविड. मैं अच्छे से पढ़ता था, आई यूज्ड टू बी इन अ राइट मेंटल स्पेस. मैं किसी और से जेईई प्रेप के बारे में बात नहीं करता था, मैं अपनी प्रेप से खुद ही मतलब रखता था. एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू टॉक टू माय कोचिंग पीपल एज वेल, बट आई यूज्ड टू बी इन अ गुड स्पेस ऑफ माइंड. मैं मोटिवेटेड रहता था, मैं स्ट्रेस नहीं लेता था. I had given up कि मेरा जेई रैंक जो भी आए, I was saying कि मुझे उससे कंसर्न ही नहीं है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है. And one particular thing I'd like to mention is कि at that government of India came up with a very great initiative of launching the NTA Abhyas app. और NTA Abhyas app में उन्होंने every day they used to take one paper, जेई लेवल का होता था और वो लोग डालते थे. तो मैं उससे स्टिक कर गया, मेरे को काफी अच्छा लगा और मैं रोज वो पेपर अटेम्प्ट करता था. I have till date attempted every paper like up till my JEE preparation. उसके बाद I have not attempted, but मेरी JEE preparation के पहले तक के NTA अभ्यास ऐप के मैंने सारे पेपर अटेम्प्ट किए. So that is also something I did in the COVID preparation after my first JEE attempt. और फिर right of mind में without any stress and good preparation to back मैंने JEE attempt second दिया. And second attempt में I beat all the expectations that everybody had around me. Everybody expected कि इतना अच्छा प्रेप है तो 99 क्रॉस करेगा. I beat that expectations as well. मैं 99.85 परसेंटाइल लेके आया in my second attempt और फिर I had the rank of 1755. So that is the entire story. तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप एस्पिरेंट और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अपने अकॉर्ड में नहीं भी जाता ना, तो आप टेंशन मत लो, आप अभी भी कर सकते हो. There is nothing lost. Keep yourself motivated. Keep sticking to what you have been doing for 11th and 12th. And if you stick to your preparation, if you stick to your material, if you stick to what people around you are suggesting, your coaching people, your teachers are telling to you, then for sure you're going to get a good rank. So first of all मैं बता देना चाहूंगा कि पहले कैसा था, प्री 2010 या प्री 2008, जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड कर पाते थे या कोचिंग में जाते थे,
ओनली दोज पीपल यूज्ड टू क्रैक जेई, क्योंकि तब इंटरनेट इतना एडवांस नहीं था, इतने सारे हमारे पास अवेलेबल नहीं, ट्यूटोरियल्स नहीं थे, इतना सब कंटेंट नहीं था ओवर द इंटरनेट। बट गवर्नमेंट के इतने अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने एंटी अभ्यास ऐप लॉन्च किया है, गवर्नमेंट का साथी इनिशिएटिव, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव दैट वी आर टॉकिंग, द प्लेटफॉर्म वी आर टॉकिंग ऑन, ये इतने सारे अच्छे इनिशिएटिव हैं। तो इवन इफ आप कोई कोचिंग नहीं भी जाते हो ना, यू स्टैंड एट द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन एज एनी अदर किड। मैं तो ये हद तक कह सकता हूँ कि अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर नीड फॉर गोइंग टू कोचिंग। जो भी कोचिंग वाला आपको करा रहे हैं ना, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, दैट इज इन ऑलरेडी बीन मेड अवेलेबल टू यू वाया द मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो अगर आप सीरियस और अच्छे एस्पिरेंट हो तो आप अच्छे से मटेरियल नेट पे अभी सोर्स करके सेल्फ स्टडी से भी आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। इट इज नॉट दैट यू नीड टू गो टू कोचिंग टू क्लियर JEE नाउ। पर्टिकुलर लाइक जो भी मैंने मेंशन किया है, ऑलरेडी मेंशन ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द नेट। Other than that, many good creators over the platforms such as YouTube are also contributing good videos that you can watch if you want to kind of enhance your preparation. So that is all the resources that people who are doing self study should be kind of involved in. आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे ध्यान देना है, जो भी आपके वीडियोस, जो भी आपके लिए लाइक I actually scrolled through entire catalog of साथी के videos and I was quite impressed. Like IITs के इतने अच्छे प्रोस आपको जेई के concept सिखा रहे हैं in such a easy way. Went through one or two of those videos, or like I was amazed at the level of content sorry at the level of content that is available to aspirants now. तो आप वो सब फॉलो करो, आप एंटीएस अभ्यास ऐप फॉलो करो, और आप फ्री भी जो रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है आप वो भी फॉलो कर सकते हो। जो भी बुक्स आपको चाहिए वो भी अब मोस्टली फ्री हो गए हैं ओवर द इंटरनेट। तो आप ये सब फॉलो करके इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग अ कोचिंग, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। So the first mistake that students generally make is, students पढ़ते हैं एक टेस्ट के लिए, फिर वो टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, फिर वो टेस्ट के मार्क्स उनको मिल जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट। जैसा आपने बोला, वो मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते। तो दिस इज द वेरी कॉमन मिस्टेक दैट आई एज एन एस्पिरेंट आल्सो यूज्ड टू मेक। मैं अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करता था। ये आप, दिस इज अ बिग नो नो इन माय आईज। आपको ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने कोई भी टेस्ट दिया, लाइक बी इट अ क्लास टेस्ट, बी इट अ जेई टेस्ट, और बी इट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टेस्ट, आपने कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट किया और अब उसका रिजल्ट आ गया, योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। आपको ये मिस्टेक्स एनालाइज करनी है, बिकॉज मोर ऑफ्टन देन नॉट आप एक ना एक मिस्टेक वापस करोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आपने एक फॉर्मूला अपने दिमाग में अलग तरीके से सेट कर लिया, उसका अलग इंटरप्रिटेशन कर लिया उस कंसेप्ट का, तो आप वो मिस्टेक ओवर द टेस्ट रिपीट करने ही वाले, राइट? एंड आई यूज्ड टू डू दैट। मैं अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहा था, मैंने टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गए, ठीक है, हो गया, आई स्टडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। फिर उसमें ही आई यूज्ड टू मेक द सेम मिस्टेक्स, वैसे ही खराब मार्क्स आए, आई यूज्ड टू डू दैट अगेन। फिर like I started analyzing my test and my scores improved through with time, right? तो analysis of test is a very must. अगर आप mistakes कर रहे हो और आपको पता ही नहीं आप mistakes कहाँ पे कर रहे हो, तो how are you going to improve? Other than that, the people what they generally do when they are attempting a test, अगर उनका first question बहुत hard निकल गया, जो उन्होंने concept शायद नहीं पढ़ा sorry, या जो उनसे सवाल अभी solve नहीं हो रहा, तो they lose the temper। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, सेकंड क्वेश्चन देखा, या कोई भी क्वेश्चन देखा जिसमें आप अटक गए, अभी जो टेस्ट होने लगे वो ऑनलाइन होते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको उस सेक्शन, अगर आपको सेक्शन स्किप करना है तो सेक्शन भी स्किप कर सकते हो, या उसी सेक्शन में कोई भी रैंडम क्वेश्चन दूसरा खोल के देखो। लोग एक क्वेश्चन में फ्लस्टर्ड हो जाते हैं और फिर उसको 10-15 मिनट दे देते हैं, फिर देन दे लुक एट द क्लॉक एंड दे सी कि ओ यार, मेरा तो इतना सारा टाइम इसमें चला गया, नाउ हाउ एम आई गोइंग टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट सेक्शन। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, डिवोट 1-2 मिनट्स टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन और फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन इज अ मस्ट। पीपल क्या करते हैं, लोग एसोसिएट नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद देयर ईगो। वो ईगो पे लेते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा, मुझे क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो सब ये करे गया हूं, ये होना ही चाहिए, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो 15-20 मिनट निकालते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप छोड़ दो। अदर थिंग दैट पीपल डू इज, बिकॉज जे इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपको पर क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वेश्चन में स्पीड के चक्कर में दे काइंड ऑफ मेक वेरी सिली मिस्टेक्स। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, ये टर्म को LHS में लिखना था RHS में लिख दिया, ऐसा कुछ करते रहते।
तो यू नीड टू हैव स्पीड, बट बिफोर स्पीड यू नीड टू हैव एक्यूरेसी। अगर जैसे कि आपने आज अपना जेई का फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया ना, तो आपका ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे 360 में से 250 लाने हैं या 280 लाने हैं। आपका ये होना चाहिए कि भाई मैं जितने भी अटेम्प्ट करूं उसमें से मेरी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। स्पीड तो विद प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस आपकी बढ़ी जाएगी। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन व्हेन यू आर बिगिनिंग, राइट। आपको फर्स्ट फोकस आपका एक्यूरेसी होना चाहिए कि मैंने जैसे 10 सवाल ही अटेम्प्ट किए, चलो 20 सवाल का पेपर था, मैंने 10 ही सवाल अटेम्प्ट किए, पर उस 10 में से मेरे 9 राइट होनी चाहिए एटलीस्ट। आई आई शुड नॉट मेक सिली मिस्टेक्स देयर। मेरे को, मैं जो भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आई नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द स्कोर। या तो जेई से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे जोक्स और मीम्स भी बने कि जैसे आपने फिफ्थ से या सेवेंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता, या आपने नाइन्थ से पढ़ा नहीं, आपने एनटीआर से अच्छे से नहीं दिया आपने, और अच्छे से आपने कैलकुलस आपको क्यों नहीं आता, आपका टेंथ निकल गया, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि नाइन्थ से कर दी या टेंथ से कर दी तभी मेरा जेई निकलेगा, इलेवेंथ से की तब तो मेरा बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ डिबंक ऑल दिस मिथ्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नाइन्थ से करने की शुरुआत जरूरत है। अगर आपने नाइन्थ से कर दिए प्रेप शुरू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सजेस्ट जेई, तो इट इज वेरी वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, यू शुड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बट लाइक लाइक द मासेस, अगर आपने मेरे जैसे भी, मैंने भी आई डिड नॉट स्टार्ट माय प्रिपरेशन बिफोर टेंथ, मैंने इलेवेंथ में ही चालू की। अगर आपने टेंथ तक नहीं की प्रिपरेशन चालू, तो यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। आप अभी भी एग्जाम को निकाल सकते हो इजीली। मैं तो इस हद तक बोल सकता हूँ कि आई हैव सीन केसेस फॉर पीपल हु हैव नॉट स्टडीड फॉर जेई इन देयर एंटायर 11th एंड हैव एंडेड अप विद वेरी गुड रैंक्स आफ्टर ओनली डूइंग प्रिपरेशन इन देयर 12th। ऑफ कोर्स अगर आपके पास टाइम है और आप सीरियस एस्पिरेंट हो, यू शुड नॉट वेट टिल 12th। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी शुरू करो प्रेप। बट ऐसा मत सोचो कि जस्ट बिकॉज आप लेट हो आप नहीं कर पाओगे। जैसा आप अभी लाइक आप ऐसे सोचने लगोगे तो आप पहले से लाइक बिफोर इवन अटेम्प्टिंग द एग्जाम आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो। अगर आपके माइंडसेट ऐसा है कि आई एम ऑलरेडी बिहाइंड द पीपल हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन वे अहेड ऑफ मी, तो आप उस माइंडसेट को कभी ओवरकम कर ही नहीं पाओ। रिगार्डलेस आप किसी भी स्टेज में यू कैन स्टिल स्टार्ट योर प्रेप, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट इट। तो द आइडियल टाइम व्हिच आई थिंक इज 11th। 9 10 से थोड़ा इट इज लाइक इफ यू हैव डन इट इज वेरी गुड। अगर आप 9 10 से पढ़ रहे हो जेई के लिए इट्स वेरी गुड, बट 11th से मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर प्रेप फ्रॉम 11th। इट इज एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर जेई प्रेप। दैट इज व्हाट समथिंग दैट इज समथिंग दैट आई वुड से। अगर आपने 11th में नहीं की तो 12th में भी आप शुरू कर सकते हो। आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बट आप स्टिल प्रिपरेशन कर सकते हो। दैट इज ऑल आई हैव टू से अबाउट स्टार्टिंग योर जेई। So, like I have talked about many topics throughout this interview. I have talked about how you should manage your time, what are the common mistakes that you should not make. I've also talked about what is the ideal time to start your JEE prep or कब आपको करना चाहिए, और मैंने like I've talked about many things throughout the. But if I have to sum it up and kind of give you one rule that you need to live by during these 2 years or this 1 year or these 4 years if you're starting from 9, then it is that keep going. Only those people who grind throughout this tenure are able to crack this examination. कुछ लोग होते हैं like they start very well, they start with a good pace, अच्छे से पढ़ते हैं, they prepare very well for the first 6 months or the first 8 months or throughout 11th, but they kind of start losing pace as 12th approaches. So the one golden rule that you need to live by is to be consistent. अगर आपने एक schedule बना लिया तो throughout these 2 years something that should be in your mind, stuck in your mind is I have to stick by this schedule no matter what. अगर आप एक schedule को follow कर रहे हो, आप consistently hard work करना है, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। इट इज नॉट अ गेम ऑफ कि आपने अच्छे से पढ़ा फिर आपने नहीं पढ़ा फिर वापस आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये इनकंसिस्टेंसी से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ओनली वे यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन इज टू बी कंसिस्टेंट, or to kind of end it on a lighter note, like even if you are not able to clear JEE, it is not the end of the world. You can, like if you are very motivated, if you think you can be able to crack it, आप drop year भी ले सकते हो, आप फिर से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड if अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इन स्कोप ऑफ माइंड कि आप ड्रॉप ईयर ले सकते हो, तो अगर आपका NIT IIT नहीं भी निकला तो बी ग्रेटफुल कि आपने जेई एक्सपीरियंस किया। जेई शायद आपको
आईआईटी या एनआईटी ना पहुंचा पाए, लेकिन आपको मेहनत करना जरूर सिखा के जाता है। अगर आपने उस प्रिपरेशन को अच्छे से लाइक उस 2 साल यू हैव बीन ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और आपने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया है ना, तो इवन इफ आपका आईआईटी या एनआईटी में नहीं हुआ, अगर आप दूसरी कॉलेज भी चले गए इंजीनियरिंग करने, फिर भी दिस हार्डवर्क विल नॉट बी लॉस्ट। यू विल हैव लर्नड कि आपको लाइफ में कैसे हार्डवर्क करना है, एंड व्हेनेवर यू हार्डवर्क विल बी रिक्वायर्ड ऑफ यू, आप यू वॉन्ट बैक अवे फ्रॉम इट। आपको पता है आपको कौन से मेंटल स्पेस में जाके यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग, राइट। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, यू शुड गिव योर बेस्ट, यू बट अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अगर आपका जेई नहीं निकला तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट यू कैन टेक द ड्रॉप ईयर, और ड्रॉप ईयर नहीं भी लेते और दूसरे कॉलेज में जाते हो तो कंसिडर जेई एंड लुक बैक एट जेई विद अ पॉजिटिव माइंड। आप अच्छे से देखिए उसे, उसने आपको शायद आईआईटी या एनआईटी ना बनाया हो, लेकिन उसने आपको एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन तो बनाई थी। जैसे कि लेट अस सपोज कि आपका एग्जाम अभी मार्च में और आप जैन तक पहुंच गए हो, आपके लास्ट के 2 या 3 महीने बाकी। तो वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज डू नॉट स्टार्ट विथ एनी न्यू टॉपिक्स। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात लाइक जो भी आप जिस भी एस्पिरेंट से या प्रीवियस अटेम्प्टर से पूछेंगे, ये भी आप सब आपको यही चीज बोलेंगे कि 2 से 3 महीना अगर आपका एग्जाम में रह गया तो दैट इज नॉट अ पीरियड वेयर यू शुड स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपको वो टॉपिक कंप्लीटली चला गया है, लाइक यू हैव नॉट स्टडीड द टॉपिक एट ऑल, तो आप उस टॉपिक को छोड़ दो। नाउ इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। 2-3 महीने पहले लाइक यू शुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट फॉर जेई, अगर आपका बोर्ड है तो यू कैन रिवाइज दोस टॉपिक्स, बट जेई पर्सपेक्टिव से आई वुड सजेस्ट कि एक्चुअली 3 महीने पहले यू कैन स्टार्ट, बट लाइक 2 महीने रह गए अगर आपके एग्जाम को, तो आप नए टॉपिक मत देखो, राइट। आपने जो भी प्रीवियस टॉपिक्स देखे हैं ना, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो टॉपिक सीखे हैं पहले, आपने जिसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आप वो प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हो। आप उसी टॉपिक के नए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके नोट्स पढ़ सकते हो, बट डोंट स्टार्ट विथ एनी न्यू टॉपिक इन दिस पीरियड। अभी एक और महीना चला गया, यू हैव रिवाइज्ड ऑल योर प्रीवियस टॉपिक्स, नाउ ओनली 1 month is left for your examination. At this point of time, your majority of time should be devoted to solving previous year questions, previous year papers actually. आपको जेई माइंडसेट में आ जाना है। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक मैं क्या करता था, जैसे जेई हमारे टाइम में 2 स्लॉट में होता था, एक मॉर्निंग स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट, राइट। तो मैंने लाइक अगर मेरा मॉर्निंग स्लॉट है सपोज 9:30 to 12:30 है और मेरा इवनिंग स्लॉट 3 to 6 है, तो मैं आई यूज्ड टू मेक श्योर कि 1 महीने पहले ये दोनों स्लॉट में आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। वो दोनों स्लॉट में मेरा बॉडी क्लॉक ऐसा हो गया था कि दिस इज एग्जाम टाइम, और 9:30 to 12:30 में एक पेपर अटेम्प्ट करता था और 3 to 6 में दूसरा पेपर अटेम्प्ट करता था। तो दैट इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू। मेरे बॉडी को अब ऑटोमेटिकली माय बॉडी वाज काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड कि ये दोनों टाइम स्लॉट में आपको एग्जाम देना। तो जब जेई आया, आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो आपको ऐसा करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप दे रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है भाई मार्क्स नहीं बन रहे मेरे, तो आई विल काइंड ऑफ पॉइंट आउट सम रीजंस दैट जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं बन रहे। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है ना और आपके मार्क्स नहीं बन रहे, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा नहीं, राइट। आप एग्जाम के प्रेशर में या मॉक टेस्ट के भी प्रेशर में आ जाते हो, और आप जो क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्विंग में सॉल्व करते थे वो आपका एग्जाम में नहीं बन। तो द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू एट दिस पॉइंट इज टू काम योर माइंड। एग्जाम के पहले यू नीड नॉट बी स्ट्रेस। आप आंखें बंद कीजिए एग्जाम के लिए, like 5 to 10 minutes before attempting the mock test, close your eyes, just concentrate on your breathing, calm your mind down, be in a good mental space, ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में मत रहिए, थोड़ा शांत जगह पे आप चले जाइए, एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर। इससे अगर आप सिर्फ इतना करते हैं ना, तो आई कैन गारंटी कि जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता कि यार इसमें तो मैंने सिली मिस्टेक की, या तो कि ये तो मैं पहले सॉल्व कर चुका था बट एग्जाम में नहीं बना, ऐसे चंक ऑफ क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगे आप अगर इतना ही करेंगे। अनदर थिंग है कि आपने उस क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व किया है, बट यू हैव नॉट करेक्टली मेमोराइज द फॉर्मूला, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि एग्जाम में आई कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। तो द थिंग दैट कैन एनहांस योर प्रिपरेशन इज एट दोस पीरियड ऑफ टाइम यू कैन क्रिएट अ फॉर्मूला शीट, जो आप पेपर शुरू होने से पहले एक बार ग्लांस करो कि पेपर मेरा अगर 9:30 से शुरू हो रहा है, अगर मॉक टेस्ट मेरा 9:30 से शुरू हो रहा है, तो 9 to 9:30 मैं फॉर्मूला शीट को रिवाइज करता हूँ। तो इससे क्या होगा
कि आप क्विकली क्वेश्चन को देख के उससे मैचिंग फॉर्मूला उसमें प्लेस करके उसमें वैल्यूज प्लेस करके आप आंसर पे आ जाएंगे. Majority of your time should not be devoted to kind of finding out the formula that is to be used in the question. It should be devoted to solving those questions. तो आपका मेमोरेशन भी अगर थोड़ा वीक है तो दैट इज द रीजन दैट आपके मार्क्स नहीं बने. तो आप फॉर्मूला शीट बनाओ और उसको रिवाइज करो. दैट इज समथिंग दैट कैन आल्सो एनहांस योर प्रिपरेशन. तो आप अगर ये दो टिप्स लाइक बीइंग काम बिफोर एग्जाम एंड रिमेम्बरिंग ऑल योर फॉर्मूलाज, ये दो टिप आप पर्टिकुलर टिप अगर आप फॉलो करते हो तो आई कैन पर्सनली गारंटी कि आपके 20-25 मार्क तो प्रीवियस मॉक टेस्ट से बढ़ने लगे. तो मैं जिस पर्टिकुलर कोचिंग में जाता था उसमें ऐसा था कि उस मंथ में हमको टॉपिक्स पढ़ाए थे ना, उसका एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ एक्चुअली 2 वीक्स एक सब्जेक्ट टेस्ट होता था. तो मैं क्या करता था कि उस सब्जेक्ट टेस्ट के लिए अलग से प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करता था. अगर मुझे जैसे मेरा सब्जेक्ट टेस्ट 2 वीक्स फ्रॉम नाउ है ना, तो उसके लिए मैं नहीं पढ़ूंगा. आई विल ओनली स्टडी फॉर द एंड ऑफ 2 मंथ्स वाला टेस्ट जो बड़ा टेस्ट है मेरा, राइट. उस सब्जेक्ट टेस्ट के लिए यू नीड टू कंसिस्टेंटली स्टडी, कंसिस्टेंटली कीप अप विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर क्लासेस. तो अगर आपके सब्जेक्ट टेस्ट या मंथली टेस्ट आ रहे हैं तो द बेस्ट वे टू गेन मार्क्स इन दोस इज एक्चुअली नॉट प्रिपेयरिंग फॉर देम पर्टिकुलरली. आप ऐसा मत सोचो कि ये टेस्ट है. अब रिगार्डलेस जो महीने में आपको पढ़ा है उसके रिवीजन में उस टेस्ट के प्रिपरेशन को इंक्लूड करो. उसके लिए अगर आप अलग से प्रिपरेशन शुरू कर दोगे ना तो यू विल काइंड ऑफ नोटिस कि आप प्रिपरेशन में थोड़ा लैग कर रहे हो, आपको टाइम कम लगने लगे. तो अगर आपके मंथ ऑन मंथ टेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम डिवोट मत करो. वो मंथ में आपको जो भी पढ़ाया है, जब भी पढ़ाया है उसको तभी खत्म करो. और आपका जब सब्जेक्ट टेस्ट आएगा तो यू विल बी काइंड ऑफ रिलैक्स और आप प्रिपरेशन से कभी आउट ऑफ पेस नहीं चलोगे. लोग क्या करते थे कि जैसे उनको 2 हफ्ता पढ़ाया, वो लोग 2 हफ्ते के लिए पढ़ते थे बट इन लूकवार्म सेंस, अच्छे से नहीं पढ़ते थे. और सब्जेक्ट टेस्ट के आगे दे स्टडी एवरीथिंग, जो लाइक मंथ टेस्ट के आगे वो लोग दे स्टडी एवरीथिंग दैट वाज टॉट इन द प्रीवियस मंथ्स. तो उस पर्टिकुलर वीक में या उस पर्टिकुलर 2-3 दिन में जो पढ़ाया था ना वो उनका मिस हो जाता था. और दिस अमाउंट पाइल्स अप. ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया 2-3 दिन ही है तो मैं कवर कर लूंगा. ये वापस 2-3 दिन और होगा और होगा और होगा. And by the end of the year you realize कि you are way back then at the position that you need to be. तो सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आप जब आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, मंथ के टेस्ट के लिए सिलेबस के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तभी आप उसका पोर्शन क्लियर करो. उसके लिए अलग से टाइम डिवोट मत. या तो आई वाज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि मेरा जो कॉलेज शुरू हुआ वो ड्यूरिंग कोविड हुआ. तो द फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स, entire first 3 semesters where I had those semesters online, and my campus actually started college started in offline mode at the end of my 4th semester, और I'm actually currently in my 6th semester. मेरा 6th semester अभी just खत्म होने आया है. तो this is this part of the interview will be motivation for all you aspirants who are currently preparing for your JEE means, right? आपका कैंपस लाइफ आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगा. आपने जो भी एनआईटी या आईआईटी के बारे में सोचा है कि बड़ा कैंपस होगा, काफी फ्रेंड्स के साथ मजा करेंगे, घूमने जाएंगे या एंजॉय करेंगे, सब रियलिटी होता है. आपने जो भी एफर्ट जेई मेंस में दिया है ना, उसका फल है कि आप अभी इतना इजीली और एंजॉय कर पा रहे हो. अगर आपने अच्छे से जेई दे दिया और आप अच्छे कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में आके द कैंपस लाइफ इज एज वाइब्रेंट एज यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग इन योर माइंड, right? And I would like to kind of calm you all guys down कि जेई आपके लिए जितना चैलेंजिंग हुआ था ना, उतना कॉलेज आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होने वाला. आपने जितना टाइम स्टडीज को जेई में दिया है उससे थोड़ा कम टाइम ही आपको कैंपस में देना होगा. आपके पास और फ्री टाइम होगा, आप और अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर पाते थे. मैं क्या करता था कि मैंने जैसे आई एम एन एविड मूवी वॉचर, लोग क्लासिक मूवीज देखना बहुत पसंद है. But during the JEE time, of course, I didn't have time to watch those movies. So मैं क्या करता था? I used to maintain a list कि ये मूवी नहीं देखा मैंने, ये मूवी नहीं देखा. And believe me, मैंने अब तक after coming to the campus, I have seen all those movies. I have covered that. So campus life is going to be very vibrant. आपके सीनियर्स भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे. प्लेसमेंट से लेके, असाइनमेंट से लेके, प्रोजेक्ट से लेके सब सीनियर्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी होंगे. Everybody will be very supportive. और कैंपस लाइफ आपने जो भी एक्सपेक्ट किया ना वैसा ही सेम टू सेम हो. तो दिस इज अ मोटिवेशन फॉर यू गाइस
कि आपको जो भी आपको एफर्ट देना है, यू कैन काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेट दैट एफर्ट इन योर 2 years ऑफ जेई। इधर आके आपको काइंड ऑफ थोड़ा चिल हो जाना है, मतलब आपको थोड़ा फ्री टाइम और मिलेगा, आप मूवीज देख सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, आप और भी लाइक काम कर सकते हो, आपको जो भी आपके पैशंस परस्यू करना है आप कर सकते हो। ये मेनी पीपल लाइक माय फ्रेंड्स हियर हैव लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट हियर। आई हैव काइंड ऑफ डिवोटेड मोर टाइम टू प्लेइंग टेबल टेनिस देन आई यूज्ड टू बिफोर। तो आप बहुत सारी चीजें कैंपस में आके कर सकते हो। तो जस्ट फोकस इन योर प्रिपरेशन राइट नाउ एंड हैव दिस ड्रीम इन योर माइंड कि मैं यार अच्छी कॉलेज पहुंचूंगा और वहां पे अपने कैंपस लाइफ को लाइक आई लिव इट टू द फुलेस्ट, और ऐसा होने ही वाला। तो लाइक जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काइंड ऑफ वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने बाकी सब एस्पिरेंट्स के पास है, तो द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल दीज गाइस इज डू नॉट गिव अप। इवन दो यू आर फाइटिंग अन अपहिल बैटल, आपको आपकी लड़ाई बाकी सबसे शायद थोड़ी हार्ड होगी, बट रिगार्डलेस अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपको उसका फल मिलेगा। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। इवन दो आपके पास थोड़े रिसोर्सेज कम होंगे, बट आई थिंक लाइक ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आवर, we have reached that stage, we have a good amount of resources that are available free of cost to you guys. So you need to exploit them as much as you can. And I have also committed myself to Sathi platform, and I'll be like available for your mentorship whenever you're required. So हम दोनों मिलके like me and you together can kind of bridge the gap. आपके जो भी resources आपको कम पड़ रहे हैं या आपको थोड़ी preparation में आपको help चाहिए या mentorship चाहिए, तो I'll be devoted to you guys. तो मैं भी I am kind of committing myself to this platform. और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप इस लड़ाई में अकेले हैं। हम सब जो भी लाइक साथी प्लेटफॉर्म में है या जो भी और भी लाइक अच्छे अच्छे क्रिएटर्स है ऑन यूट्यूब आर बिहाइंड यू, आर विथ यू एट ऑल टाइम्स, एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस प्रिपरेशन। आपके साथ हम सब है, एंड जस्ट गो फॉर इट गाइस। लाइक आई नो इट्स वेरी हार्ड, आई नो आपके सिचुएशंस कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन उतना नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर स्टेटस इन लाइफ, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशंस, but keep grinding, keep doing it guys, and before long you're going to crack it. अभी like let us suppose कि अभी you are only 1 week from JEE, right? आपने सब अच्छे से प्रेप किया है, आपने like you have followed all your whatever all your guides have been saying, आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया, आपने सब किया है। अभी एक हफ्ते पहले आपको क्या करना है, अगर आपका एग्जाम बहुत ही क्लोज आ गया तो अभी लाइक इट इज काइंड ऑफ काउंटर इंटुइटिव, बट अभी ऐसा टाइम है कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। ऐसा एक हफ्ता पहले ही बचा है ना आपका जेई का, तो आप थोड़ा चिल कर सकते हो। आप लाइक एक दो मूवीज देख लो शायद। आई नो दैट व्हाट आई एम सेइंग इज काइंड ऑफ काउंटर इंटुइटिव कि ऐसा मैं कैसे करूं, अभी तो मुझे और पढ़ना पड़ेगा। बट अभी कैसा टाइम है कि एट दिस मोमेंट ऑल दैट शुड बी ऑफ योर कंसर्न इज आपका माइंड स्पेस। जो भी प्रिपरेशन होना था वो हो चुका है। अभी there is nothing new that you can learn, there is nothing new that you can do right now. आपको अभी all you need to focus on right now is to be in a good mental space. तो आप रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करो, थोड़ा लाइक वॉच ए मूवी और टू, गो फॉर वॉक्स, काइंड ऑफ चिल, काइंड ऑफ गेट इन अ गुड मेंटल स्पेस। आप थोड़ा चिल कर सकते हो। और एग्जाम डे पे तो मैं इस हद तक कह सकता हूँ कि अगर आपका एग्जाम आज है ना, तो आज तो आप पढ़ो ही मत, आज छोड़ दो पढ़। जो भी पढ़ना था आपने कल पढ़ चुका या उसके पहले पढ़ चुका, एक दो दिन पहले यू कैन रिवाइज थिंग्स, बट एग्जाम डे पे यू कैन लीव ऑल दोस थिंग्स। अभी आप सिर्फ सही मेंटल स्पेस में आ जाओ, एंड लाइक आई नो इट इज वेरी easy for me to say and very hard for you guys to, you will be very motivated to kind of open your books back and चलो यार थोड़ा ये देख लूं, थोड़ा चलो मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है तो थोड़े ऑर्गेनिक के रिएक्शंस देख लिए मैंने, इनऑर्गेनिक मेरा यार कच्चा है तो पी ब्लॉक थोड़ा पढ़ लेता हूँ, एस ब्लॉक पढ़ लेता हूँ। बट आप मत करो, लाइक दिस वोंट एक्चुअली हेल्प यू, दिस विल मेक यू मोर एंग्शियस, राइट? तो उस एंजाइटी को काम डाउन करने का एक ही तरीका है, ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट इन बोथ दिस फैक्टर्स। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, तो इवन गॉड इज गोइंग टू सपोर्ट यू। एग्जाम में आपको सब याद रहेगा, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे एंड बी इन अ गुड मेंटल स्पेस। सो रिलैक्स at this particular time,
believe in God, believe in your preparation, and just go for it.